Jai Sri Radhe, Hare Krishna. Welcome to Migratory Monk channel. This is the episode number 29. In our previous episode, we had discussed about a so-called yogi. His name is Mr. Ravi Shankar, and about his organization, The Art of Living. I had proved that how he is preaching in a completely wrong way and against our Vedic spiritual science, the original science. So today we are also going to discuss about a so-called yogi, another fraud, another cheater. His name is Sivananda, and he has established an organization which is called Art of Dying, Shiva Yoga Sadhana. And this person is also very famous, and he is saying something about how to rise your Kundalini Shakti, how to become successful by using yoga practice in your day-to-day life, and how to achieve the ultimate goal of life, which is merging into the universal energy, etc., etc. These people say whatever they say. People like Jagi Vasudev, Ravi Shankar, this Shiva Yoga, Shiva Avadut Shiva Baba, about whom we are discussing right now. Their philosophy is more or less same. They think that there is no God actually. There is an universal energy, universal consciousness exists. Sometimes that universal energy accepts a physical body, becomes a powerful personality, and generally people, the ignorant police people, they worship him as God, because he actually, that personality, however great he may be, he will also die. He is under the law of material nature, वो कर्म के अधीन है, और he comes, he shows some great activities, he shows some great performance, does something for the welfare of the for society, and after that he also dies. But this is the law of nature. जो जन्म हुआ है उसका मृत्यु होगा. बट ये जो लोग होते हैं, दिस टाइप ऑफ पीपल, नंबर वन, they have no idea what is actually the Vedic spiritual science. They have never ever tried to understand the real Vedic spiritual science based on the authoritative scriptures. They never try to understand it. Why? Because they have some misconception. People like Ravi Shankar or Jagi Vasudev, people like Avadhuta Shiva Baba, their desire to become a religious guru, their desire to acquire name and fame within a short period of time, their desire to live like a king, and also because of these people are little educated, their wisdom has developed up to a certain level, and they understand that family life is not the enjoyment in the family life, in social life, is not permanent. After a particular period of time, you cannot get happiness, same kind of happiness, enjoyment or pleasure in your family life, or in your professional job, or in your society.
it is natural. These people understand this. हम परिवार है, नौकरी करते हैं, जो भी कुछ काम धंधा करते हैं, हमको वो पहले पहले बहुत अच्छा लगता है, बाद में वही नौकरी, वही फैमिली, परिवार, पत्नी, बीवी, बच्चे, फ्रेंड सर्कल, ये फिर बाद में फिर वही अच्छा भी नहीं लगता है, इतना आदमी बोर हो जाता है. तो दिस पीपल अंडरस्टैंड दिस फिलोसफी, द लॉ ऑफ मटेरियल नेचर. So what they do actually, they want to achieve fame and a luxurious life. They want to live like a king in a short period of time, and for that purpose, they use this Vedic spiritual science, this so-called yoga, Hatha yoga, and Patanjali Ashtanga yoga, this yoga, that yoga, this mystical process, tantra, mantra, whatever they find out. So they choose this religious field as their weapon, or as their tool to fulfill their inner desires. Exactly as a politician. In the past, people like Lal Bahadur Shastri, Netaji Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, these kind of people, Bal Gangadhar Tilak, these kind of people were coming to politics because they wanted to serve their country, serve their motherland, in a very selfless mood, निस्वार्थ होकर अपने देश की सेवा करना. इसलिए वो पॉलिटिक्स में आते थे. ये भगत सिंह है, सुभाष बोस है, पीपल. लेकिन आज की तारीख में, इन प्रेजेंट सिचुएशन, दोज पीपल हु आर कमिंग इनटू दिस पॉलिटिकल फील्ड, वी नो व्हाट इज देयर कैरेक्टर. वो एक बार जो नेता बनते हैं, कि पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट टाइप ऑफ मेथड दे अप्लाई टू बिकम ए नेता. नेता बनने के लिए क्या क्या वो टेक्निक, ट्रिक्स अप्लाई करते हैं. और एक बार जो बन जाते हैं, वंस देर इलेक्टेड एज ए पॉलिटिकल लीडर, इलेक्टेड एज ए MLA और MP, और आफ्टर सम टाइम दे बिकम मिनिस्टर्स, व्हाट दे डू एक्चुअली. एक बार मंत्री बन गए, नेता बन गए, तो करोड़ों की घोटाला करते हैं, इतने कि उनकी 100 पीढ़ी तक खा पी के मजे में रहे. अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन इंडिया का जो है, ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है या उससे पहले जो गवर्नमेंट, जो भी नेता है, ये तो देश को बेच दिए हैं. फॉर एग्जांपल द वक्फ बोर्ड जो लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो है अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में द वक्फ बोर्ड लॉ लाए हैं, टेम्पल वर्शिप एक्ट लाए हैं, माइनॉरिटी कमीशन लाए हैं. तो एक तरह से उन्होंने देश को बेच दिया है. टुडेज पॉलिटिशियंस हैव सोल्ड देयर कंट्री फॉर द सेक ऑफ टू गेन पॉलिटिकल पावर. अपनी कुर्सी बचाने के लिए, राजनीतिक पावर हासिल करने के लिए इन लोगों ने अपने देश को बेच दिया, इंडिया को बेच दिया. तो वी कैन अंडरस्टैंड देयर कैरेक्टर. एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंस इन द स्पिरिचुअल फील्ड, रिलीजियस फील्ड. दिस काइंड ऑफ पीपल लाइक आदि जोगी, जागी वासुदेव, रविशंकर, दिस शिव बाबा, दिस राम रहीम, अभी जेल में है, or like Asaram Bapu. So these kind of people, very crooked-minded and very abnormal people. Those people who have a tremendous desire to achieve a name, fame, money, everything within a short period of time. They come to this religious field, establish their own ashram or own organization, and in the name of yoga and meditation or dharma, they actually fulfill their personal desires. Because they want a life of a king. So this is their main intention. इसकी वजह से वो इस रिलीजियस फील्ड में आते हैं. लेकिन बहाना करते हैं कि हम समाज की, लेकिन कुछ तो आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं समाज की वेलफेयर के लिए कुछ कर रहा हूँ, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ में कर रहा हूँ, लोगों का सेवा कर रहा हूँ, हमारे आश्रम में भंडारा होता है, हम खाने को देते हैं, गरीब बच्चों के लिए हम स्कूल देते हैं,
स्कूल फ्री में स्कूल में पढ़ाते हैं। तो ये सब हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो ये उनका इंटेंशन है। सो नेक्स्ट वो क्या करते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ पर्टिकुलर नॉलेज अबाउट द स्पिरिचुअल साइंस, वैदिक स्पिरिचुअल साइंस, जब वो पब्लिक को कुछ एक नया डिस्कवर इन्वेंशन करके कुछ बोलते हैं स्पिरिचुअल साइंस के बारे में, तो जनरली इंडिया के जो लोग हैं, they will ask about they will ask about many questions about Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Upanishad, Ved, and regarding Mahabharata or Ramayana. People ask different types of questions. In India, generally people are aware of they have forgotten most of the spiritual science, but whatever they have remembered, जो भी कुछ टीवी से प्रवचन वगैरह सुन के हमारे देश के लोग, उनको मालूम है थोड़ा बहुत रामायण महाभारत के बारे में, सबको थोड़ा थोड़ा पता है। तो दे आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस महाभारत, रामायण और पुराण और उपनिषद, दे आस्क क्वेश्चन। सो द गुरु must be able to answer or solve the problem, solve these questions, or answer properly to satisfy their inquisitive mind. वो जो क्वेश्चन सवाल करते हैं उनको गुरु को तो आंसर देना पड़ेगा, ताकि उनको लगे कि हाँ, we had asked a question to this religious leader and he has given me a proper answer. तो उनको भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा आपको। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो आपको डोनेशन नहीं देंगे। If they are not satisfied, they will not give you donation. So somehow or other, by hook or crook, by applying any method, you have to invent something. You have to use your mental speculation, you have to use your wild imagination, your fantasy, and your personal understanding about these scriptures, Vedic authentic scriptures, to try to give them an answer just to satisfy them temporarily. So because of this, these so-called religious gurus, they always give example from Bhagavad Gita, Ramayana, Mahabharata, but all these answers, if you will analyze it, they give in a completely wrong way, and it only creates misunderstanding. Generally people are ignorant, they don't understand it, what this so-called yogi or religious leader is saying. If they get satisfied immediately, but temporarily, but after some time, after 1 year or 2 years, suppose they come in contact with another yogi, another religious personality, he gives the answer which is completely against the answer which the previous yogi had given. मैंने एक जोगी को, आपने जागी वासुदेव को कुछ आपने पूछा, उसने कुछ आंसर दे दिया। शिव को मान लीजिए, शिव कौन है फॉर एग्जाम्पल, हु इज शिव? इफ यू आस्क द सेम क्वेश्चन टू जागी वासुदेव, हु विल गिव ए डिफरेंट टाइप ऑफ आंसर। इफ यू आस्क हु इज शिव टू रवि शंकर, ही विल गिव ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ आंसर। एंड इफ यू आस्क द शिव टू द सो कॉल्ड अवधूत बाबा, शिवानंद, he will give you an answer in a completely different way. जागी वासुदेव क्या बोलेगा? जागी वासुदेव will say that Lord Shiva, Adi Yogi, he appeared 15,000 years ago. What Ravi Shankar will say? Shiva is not a personality, is not a person. Shiva is some kind of energy, some kind of consciousness, a state of consciousness, a spiritual consciousness. He will say like this. Shiva has no form, nothing. It is not that Shiva is a person who is staying in Kailas. Ravi Shankar will speak like this. And if you ask the same question to Avadhuta Baba, he will say, no, Shiva is a person, he lives in Kailas, and he will fulfill all your desires. Whatever you want, Shiva will give you. And you will also, by practicing meditation, by practicing the principles, or following the rule and regulation which I will prescribe for you, one day you will become like a Shiva. Shiva is there, living in Kailas. But if you will follow my direction,
the yogic process which I am giving you, if you follow it properly, one day you will become like Shiva. So he will give this type of answer. And if you analyze, make a comparison among all these philosophies, philosophy given by Jagi Vasudev, given by Ravi Shankar, given by Avadhuta Shiva Baba, you will be completely puzzled, completely confused what actually these religious masters are saying. You cannot find out any proper way or a normal way to understand the things properly, because each one has his own philosophy, has his own way to convince you about the spiritual principles. So this creates only confusion, misconception about authentic Vedic spiritual science. So that is the reason people are misguided and all kinds of disturbance are created in India. It is because of these so-called religious gurus. So this Avadhuta Baba is among them. I think he is a fraud and cheater. Today we will discuss what his philosophy is. He is saying whatever he is teaching, the name of his yoga process is called Sambhavi Shakti. You have to practice, there is a process called Sambhavi, you have to practice it. By practicing this Sambhavi Shakti, you will become Lord Narayan, like Lord Narayan. नर, हिंदी में कहते हैं आप नर से नारायण बन जाओगे. टुडे यू आर ए लिविंग एंटिटी, यू आर जीवा, बट बाय प्रैक्टिसिंग दिस टाइप ऑफ योगा वन डे यू विल बिकम लाइक नारायण. ये जनरली ये जो शंकराचार्य फिलोसफी के जो लोग अद्वैत वेदांत होते हैं वो भी यही कहते हैं, वो भी प्रणाम करते हैं नमो नारायण, मतलब मैं जीव नहीं, मैं नारायण हूँ. हम सब जीव नहीं, हम नारायण हैं सब. जो माया हम माया के कब्जे में है, माया हट जाएगा तो हम नारायण बन जाएंगे. दिस फिलोसफी इज कम्प्लीटली अगेंस्ट वैदिक सनातन धर्म. वैदिक सनातन में इस तरह के लोगों को राक्षस कहा गया है, डिमोन्स कहा गया. दिस पीपल आर कॉल्ड डिमोन्स अकॉर्डिंग टू ऑथोरिटेटिव वैदिक स्पिरिचुअल नॉलेज और अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर्स. ये राक्षसों की ये फिलोसफी है, मैं नारायण, मैं भगवान हूँ. ये जो लोग हैं ये भी यही सिखाते हैं. सो ये जो अवधूत बाबा जो सिखाता है जो योगा, उसका नाम है संभवी शक्ति, संभवी क्रिया और श्री विद्या, श्री विद्या. उसको कैसे, वो विद्या क्या है? द ओरिजिन, द अल्टीमेट ट्रूथ इज शक्ति, यूनिवर्सल शक्ति, यूनिवर्सल एनर्जी. दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ. दैट यूनिवर्सल एनर्जी इज कॉल्ड मदर भगवती. मदर भगवती इज द यूनिवर्सल शक्ति. शक्ति मीन्स एनर्जी, एनर्जी मीन्स जनरली इट इज ए फीमेल. शक्ति फीमेल होता है, दुर्गा देवी, सरस्वती, लक्ष्मी. सो दिस भगवती, मदर भगवती इज द प्रिमेवल पोटेंसी, आदि शक्ति. अब ये जो लॉर्ड नारायण है, विष्णु है, ये भी आदि शक्ति से निकले हैं. कैसे निकले हैं, क्या करेंगे वो मैं नहीं बताऊंगा, इतना गहराई में नहीं जाऊंगा. तो ये जो आदि शक्ति, जब भगवान विष्णु हयग्रीव रूप में आए थे, व्हेन लॉर्ड विष्णु अपीयर्ड एज हयग्रीव, एक घोड़े की फॉर्म में आए थे. Lord Vishnu came in the form of a horse, that is called Hayagriva avatar. Bhagavan Vishnu got this knowledge in his Hayagriva incarnations from Mother Bhagavati. Mother Bhagavati initiated Lord Vishnu. माँ भगवती ने भगवान विष्णु को दीक्षा दिया. After taking initiation from Mother Bhagavati, Lord Vishnu acquired this knowledge from Mother Bhagavati, which is the Adi Shakti, which is the primeval energy, universal energy. भगवान विष्णु को प्राप्त किया. उससे पहले भगवान विष्णु को ज्ञान नहीं था. ये फिलोसफी एक कंप्लीटली बिजार एंड एब्सर्ड फिलोसफी है. भगवान विष्णु कौन है? ये द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड. सारे सृष्टि उन्हीं से आया है, सारे सृष्टि उन्हीं में लीन हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा जब वो चाहेंगे. एक पर्टिकुलर समय में क्रिएशन टू प्लेस होता है. आफ्टर ए पर्टिकुलर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम द क्रिएशन मर्जेस इनटू लॉर्ड विष्णु. सब कुछ ध्वंस हो जाता है. ये शिव, ब्रह्मा सब उनसे आते हैं, जो शक्ति फक्ति सब उन्हीं से आते हैं. हमारे अकॉर्डिंग टू वैष्णव फिलोसफी, अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु,
The energy of Lord Vishnu, Krishna is the original Supreme Personality of Godhead. He is the number one. Krishna, Lord Krishna. When Lord Krishna assumes, expand himself as Mahavishnu, Narayana. And Mahavishnu desires to create this material cosmos. When Mahavishnu desires this material cosmos, to create material cosmos, his desire, his energy assumes a form, assumes a female form. That energy is called Mahamaya, Durga Shakti. Material potency, spiritual potency is called Yogamaya. I am not discussing about Yogamaya. I am discussing about Lord Vishnu's material energy. That is called Mahamaya, Durga. But after appearing, when the Durga appears, she does not dare to come before Lord Vishnu. माँ भगवती, जो दुर्गा देवी, जो भगवान की भौतिक शक्ति का रिप्रेजेंट करते हैं, भौतिक शक्ति, ही इज द पर्सनिफिकेशन और लॉर्ड विष्णुस मटेरियल एनर्जी। भगवान की माया शक्ति का पर्सनिफिकेशन है दुर्गा देवी। लेकिन दुर्गा देवी कभी भी भगवान विष्णु के सामने नहीं आते, उनको शर्म आती है, लज्जा आती है। ये शास्त्र में लिखा गया, हमारे आचार्य लोग हमको बताते हैं। क्योंकि भौतिक क्रिएशन करना, किसी को पनिशमेंट देना, ये जो जीवात्माएं हैं, लिविंग एंटिटीज हैं, उनको सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में इनको बांध के रखना, भगवान से अलग करके रखना, ये कोई अच्छा काम नहीं है। टू बाइंड a living entity in the modes of material nature, to keep him inside a prison. This prison means this material world. Is not some kind of very glorious act. जो भगवान की जो external potency दुर्गा देवी जी, she understand it very clearly. So that is the reason she realizes that I am not doing something very great work. I am doing something which is not so good. It is not good for the living entity. After all, the living entities, the souls, are like the sons of Lord Narayana. Aham Bijaprada Pita. Lord Narayana is my father, I am his son. So it is not good to separate father and son, but create some hindrance, obstacles between the father and son. पिता और पुत्र को दोनों को अलग कर देना किसी एक शक्ति के द्वारा, ये ठीक नहीं है। दिस प्रिंसिपल दुर्गा देवी अंडरस्टैंड इज वेरी क्लियरली। दैट इज द रीजन दुर्गा देवी फील असेम टू कम बिफोर लॉर्ड विष्णु। वो भगवान के सामने, नारायण के सामने आने के लिए दुर्गा देवी लज्जा फील करती है, इतना उनको ठीक अच्छा नहीं लगता। ये वैष्णव आचार्य की फिलोसफी, क्योंकि दुर्गा देवी भगवान विष्णु के अंडर में काम करते हैं। यहाँ दिस पर्सन इज अवधूत बाबा इज सेइंग भगवती द ओरिजिनल पोटेंसी, ही इज द अल्टीमेट ट्रूथ। शक्ति, आई हैव टोल्ड इट अगेन एंड अगेन दैट एनर्जी हैज नो इंडिपेंडेंट डिजायर। जो शक्ति होती है भगवान, शक्ति का अपना कोई इंडिपेंडेंट डिजायर नहीं होता है। भगवान क्या है? भगवान लॉर्ड कृष्ण इज ए सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड। ही इज ए पुरुष, आदि पुरुष, प्रिमेवल मेल पर्सनालिटी। गॉड इज ए मेल पर्सन। वो भगवान स्त्री भी है, नारी है, सब कुछ उन्हीं से आया है, वही सब कुछ है। भगवान गीता में वही कहते हैं, माता धाता पिता मैं है अर्जुन, मैं आई एम योर फादर, आई एम योर मदर, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर ग्रैंड फादर, आई एम योर स्पिरिचुअल मास्टर, आई एम एवरीथिंग टू यू। मैं ही सब कुछ हूँ, सब कुछ मुझसे ही निकला है। एनर्जी, तो एनर्जी भगवान की शक्ति है, भगवान एक पुरुष है, उनका शक्ति है। ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्म से ब्रह्मा जी भगवान को जो पहली बार देखे, ब्रह्मा जी ऑफरिंग हिज प्रेयर टू एट द लोटस फीट ऑफ कृष्ण कि आप ही आदि पुरुष हैं, सचिदानंद हैं, आपका नाम गोविंद है, भगवान ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो भगवान पुरुष है, उनमें शक्ति रहता है। भगवान चाहते हैं तो शक्ति प्रकाश होती है, शक्ति का मैनिफेस्ट होती है भगवान की इच्छा से। शक्ति का अपना कोई इच्छा से, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है। एनर्जी हैज नो इंडिपेंडेंट डिजायर। ये जो अवधूत बाबा है, ये क्या बोल रहे हैं कि आदि जो भी जो मदर भगवती हैं, मदर भगवती इज द प्रिमेवल अल्टीमेट ट्रूथ। मदर भगवती गेव इनिशिएशन, दीक्षा टू लॉर्ड नारायण। विष्णु को दीक्षा दी, उससे पहले भगवान विष्णु को ज्ञान नहीं था। ये उनकी अंडरस्टैंडिंग। आप समझे कितना प्रौढ़ आदमी है, कितना एक गधा है, मूर्ख आदमी है। तो वहीं से जब
तो माँ भगवत से लॉर्ड विष्णु ज्ञान हासिल किए, और ये ज्ञान लॉर्ड विष्णु बाद में अगस्त्य ऋषि जो हैं, अगस्त्य ऋषि को उन्होंने दीक्षा दिए और ये ज्ञान दिए। तो भगवती से भगवान विष्णु के को ये ज्ञान आया, स्त्री विद्या, संभवी शक्ति, जो शिव योग जो सिखा रहे हैं जो बाबा, और भगवती से विष्णु, विष्णु से अगस्त मुनि, अगस्त मुनि फिर उनकी शिष्यों को दिए। इस तरह से वो ज्ञान आया। ये जो आसमान में जो सप्त ऋषि होते हैं, कत्रु, पुलह, पुलस्त, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, मरीचि, ये बाबा का कहने का, बाबा कैसे कहते हैं, ये सारे के सारे जितने भी सप्तर्षि जो मंडल होता है, 7 स्टार्स जो होते हैं, ये भी सब श्री विद्या ही अपनी लाइफ में प्रैक्टिस किए हैं। उनके जो महर्षि बने हैं, उनके पास जो शक्ति है, ये इसी श्री विद्या से आया है, जो भगवती माँ ने नारायण को दिए थे। मेरे 25-30 साल की लाइफ में स्पिरिचुअल, जो हमने तो शास्त्र पढ़े, गीता, रामायण पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, उपनिषद वगैरह पढ़ते हैं, मैंने कभी अपने जीवन में ऐसा कभी पढ़ा ही नहीं। जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं, अगस्त, कत्रु, पुलस्त, अंगिरी, अतिरा, वशिष्ठ, मरीचि, ये नारद मुनि, ये सौनक कुमार, सनंदन, ब्रह्मा जी को जो बेटे हैं, शिव जी हैं, ये सारे के सारे वैष्णव हैं। इनको पूरी अच्छी तरह से मालूम है कि भगवान विष्णु ही हैं, और विष्णु ही संसार के पालन करते हैं, सब कुछ उन्हीं से आता है। भगवान कौन है? वासुदेव, लॉर्ड कृष्ण वासुदेव, वो सब कुछ में है वही। ये सारे ऋषि मुनि को मालूम होता है। इसी तरह से वो उनकी उपासना करते हैं, अपनी अपनी तरीके से उपासना करते हैं उनकी। कोई ध्यान में विष्णु, भगवान विष्णु के ध्यान करता है, कोई योग करता है, कोई भगवान विष्णु को एक साइंटिफिक वे में उनकी समझने की कोशिश करता है, जो सांख्य फिलोसफी कहते हैं। कोई ज्ञान मार्गी होता है, जैसे सनत कुमार जो भगवान की, जो ब्रह्मा जी के जो 4 बेटे हैं। कोई भक्ति मार्ग में जाता है, जो नारद मुनि है, भगवान की भक्ति करते हैं, अलग अलग अपनी पसंद के हिसाब से, लेकिन एक मार्ग पकड़ लेते हैं। बट दे ऑल वर्शिप लॉर्ड विष्णु, दे नो 100% परफेक्टली द लॉर्ड विष्णु इज द ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। उनकी कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। बट दिस अवधूत बाबा इज सेइंग दैट दिस सप्तर्षि, बड़े बड़े जो महर्षि हैं, दे गॉट दिस नॉलेज फ्रॉम लॉर्ड विष्णु, एंड दिस नॉलेज ओरिजिनली केम फ्रॉम भगवती। तो भगवती हो अल्टीमेट ट्रूथ है, विष्णु नहीं है। ये दिस विचार फिलोसफी दिस मैन इज प्रीचिंग, अवधूत बाबा शिव जोगी। अनदर उनके और एक पॉइंट क्या शिव बाबा बोलते हैं, वन हु प्रैक्टिसेस दिस श्री विद्या विल बिकम लाइक शिव। अगर आप ये अवधूत बाबा जो है उनकी दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे, यू विल फॉलो द प्रिंसिपल व्हाट इज प्रेस्क्राइब्ड बाय दिस अवधूत बाबा, जैसे वो जोग बताते हैं, वन डे यू विल बिकम लाइक ए शिव, you will become like Shiva. You will also not like Shiva, you will become Shiva. आप शिव बन जाएंगे प्रैक्टिस करके। ये अवधूत बाबा भी बहुत ड्रामा करता है। वो देखेंगे, वो जब कभी कभी प्रवचन देता है, वो बैठता है लाल कलर की कपड़ा पहन के, उसकी वाइफ भी साथ में बैठती है, उसका बेटा भी है, तो वो भी एक सोसाइटी को दिखाते हैं कि मैं शिव हूँ, ये मेरी पत्नी है, वो जो मेरी अर्धांगिनी, वो भी आदिशक्ति है, शिव जी का बेटा गणेश है, ये भी मेरा भी बेटा एक है। तो समाज को मैं ही शिव हूँ ना, वो शिव है, कैलाश में बैठते हैं पार्वती जी के साथ, गणपति जी उनका बेटा है, कार्तिक बेटे हैं, तो ये भी शिव है। प्रैक्टिस करके ये भी शिव बन गया है, वही शिव यहाँ आया है, उसका भी पत्नी है, बेटा है, गणेश है, और वो बेटा भी प्रवचन देता है। तो वो इस तरह का एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं समाज में। एक जैसे फिल्म होता है ना, फिल्मों में कुछ दिखाया जाता है, इमेजिनेशन, फैंटासी दिखाया जाता है, तो इस तरह से फैंटासी समाज को दिखाते हैं, मैं शिव हो गया हूँ साधना कर करके, और तुम फॉलो करोगे प्रिंसिपल, प्रैक्टिस करोगे जो मैं तुमको बोल रहा हूँ, तुम शिव बन जाओ। यू विल ऑल्सो बिकम लाइक शिव बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स, फॉलोइंग माई ऑर्डर्स, और फॉलोइंग द वे विच आई विल टीच यू। उसके बाद वो क्या कहते हैं फिर, ये जो आदि शंकराचार्य हैं, उनका जो फिलोसफी अद्वैत वेदांत, आदि शंकराचार्य वो भी जो विद्या है, उन्होंने श्री विद्या को प्रैक्टिस किए थे आदि शंकराचार्य, और प्रैक्टिस कर करके वो परम तत्व को अनुभव किए थे। उसके बारे में एक कथा भी वो बोलते हैं। और ये जो हम क्या, अकॉर्डिंग टू वैदिक स्पिरिचुअल साइंस, हमारी जो वैष्णव परंपरा में हम जानते हैं कि जगतगुरु शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जो है, वो साक्षात शिव जी के अवतार हैं। वो आए थे पर्टिकुलर टू फुलफिल ए पर्टिकुलर डिजायर ऑफ लॉर्ड नारायण। उस समय जब आदि शंकराचार्य आए यहाँ इस जगत में, उस समय बौद्ध फिलोसफी पूरी इंडिया में व्याप्त था। द पीपुल, ऑलमोस्ट ऑल द पीपुल
of India, Bharatavarsa, they abandoned the Vedic way of life and they abandoned the Vedic scriptures. They accepted Buddha philosophy, Buddhism, because of the powerful personality of Buddha, Gautama Buddha. But this Buddhism is one kind of demoniac philosophy. People who are nature is demoniac, they accept Buddhism. वो कोई आत्मा फात्मा मानते नहीं, उनका फिलोसफी वाला. So Lord Vishnu, who is the Supreme Lord, who sent Lord Shiva, that you go to you take incarnation in this material world, your name will be Sankara, and you preach, you somehow or other, by using any method, according to the time and circumstances, you attract the people, particularly the Indian people, means Bharatiyas, to Vedic Sanatana Dharma. These people, Aryan people, they have abandoned their original religious practices, which is called Arya Dharma, Sanatana Dharma. Now they are following Buddhism. So you, Shankara, Shiva, you go there, take incarnation, and again attract people of Bharata towards Vedic Sanatana Dharma. So that is the reason Vishnu, Lord Shiva, who came as Shankaracharya and again established Vedic Sanatana Dharma, who taught at that time to the people that in your Buddhism, Buddha philosophy, you think that God has no form. There is nothing called Atma. It is not like in your Buddhism this type of philosophy is given. In our Vedic science, this philosophy is already given. Bhagavan means Brahma, Nirakar, without any form, is some kind of energy. And Atma, we think I am an Atma, that is illusion. Actually, Brahma, some portion of Brahma has been covered by material potential, by Maya. This is the reason a soul, I think that I am a Jiva. I am actually Brahma. Who I am Brahma, Aham Brahmasmi. Brahma. Because Maya has covered my consciousness, I am thinking myself as a Jiva. The moment by practicing Jnana Yoga, by acquiring knowledge, spiritual knowledge, when the Maya will be eradicated, I can destroy Maya, I can destroy the power of Maya, the effect of Maya, then I will immediately understand that I am actually Brahma. I am Brahma. And I will merge into this small Brahma, I myself will merge into the greater Brahma. तो मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन माया कवर कर लिया है, इसलिए अपने आप को मैं जीव समझता हूँ, लेकिन साधना करके जब वो माया हट जाएगा मैं ब्रह्म में लीन हो, जो मेरी दैट इज माई ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, आई एम ब्रह्म, दैट्स ऑल. और ब्रह्म इज ओमनी प्रेजेंट, इज प्रेजेंट एवरीवेयर, एवरीथिंग इज ब्रह्म, nothing, this world, this material creation, this body, everything is Maya, everything is false. Nothing has no meaning, everything is emptiness. This is the philosophy of Lord Shankaracharya. So Shankaracharya told the Buddhists, the followers of the Buddhism, that whatever you are practicing in the name of Buddhism, that philosophy, that spiritual science is already given in our Vedic literatures. So why unnecessary you are abandoning this our traditional Vedic principles and following some new type of religion? Better you come back to our cult. Better you come back to Sanatana Dharma. आप क्यों बुद्धिज्म प्रैक्टिस करते हैं? जो आप चाहते हैं, आप लीन हो जाएंगे, निराकार ब्रह्म बन जाएंगे, भगवान कोई फॉर्म नहीं, वो तो हमारी वेद में है. आप वेद में आके पालन करो ना, अपनी धर्म को पालन करो. इतने दिन से आप पालन करते आ रहे हैं, जब से सृष्टि बना तब से. अब क्यों सडनली आप क्यों उसको छोड़ देते हैं? हमें अपनी धर्म पालन करना चाहिए. सो इन दिस वे, बाय अप्लाइंग दिस ट्रिक्स, दिस मेथड, somehow or other Lord Shankaracharya again established वैदिक वे ऑफ लाइफ इन इंडिया. वैदिक जो ग्रंथ है, वैदिक समाज जो है, वर्णाश्रम सिस्टम है, ये शंकराचार्य ने उसको पुनर्स्थापना की वैदिक धर्म को भारत में. और ये दिस वाज ए मिराकल. ये जगतगुरु शंकराचार्य जो शिव जी हैं, वही वो कर सकते थे. ए पर्सनालिटी एज पावरफुल लॉर्ड शिव ओनली कैन डू दिस टाइप ऑफ जॉब. इतना आसान नहीं है. ये जो बुद्धिस्ट होते हैं, उनकी ब्रेन वर्क, उनका माइंड को कैप्चर करके उनको अगेन सनातन धर्म में लाना, ये नियरली इम्पॉसिबल. इतना आसान नहीं है.
आप आजकल के जो बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आप उनको देख लीजिए, उनके साथ बातचीत कीजिए, उनको गीता रामायण की बात बताए, देखिए वो क्या बोलते हैं। जरूरत पड़ता आपको पिटाई कर देंगे आपकी, कुछ भगवान नहीं मानते। अभी तो अम्बेडकर को मानते हैं भगवान, आपको क्या नारायण को नहीं मानेंगे, अम्बेडकर को भगवान मानेंगे। ऐसे लोग हैं, उनको वैदिक सनातन धर्म को लाना कितना मुश्किल है, लेकिन ये काम जगत गुरु शंकराचार्य ने किए थे। लेकिन जो भी भगवान की, नारायण की, तो मेरा जो पॉइंट है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दैट whatever Shankaracharya did, he did according to the instruction of Lord Vishnu Narayan. And who is Narayan? Narayan is his worshipful deity. भगवान नारायण ही भगवान है, उनकी डायरेक्शन में सभी काम करते हैं। विष्णु, ब्रह्मा, दुर्गा सब उनकी अंडर में काम करते हैं। जो बोलते हैं मालिक के हिसाब से, जो उनके नौकर को बोलेगा आपको ऐसा काम करना है, उनको करना पड़ेगा। ये हमारी वैदिक स्पिरिचुअल साइंस है। लेकिन ये जो अवधूत बाबा इससे दैट नो ओरिजिनल जो भगवती जो है, माँ भगवती वही ओरिजिनल है। उन्होंने विष्णु उनसे ज्ञान ली। पहले विष्णु बेवकूफ मूर्ख थे, आदमी थे, भगवती ही उनको ज्ञान दिया। और ये आदि शंकराचार्य जो हैं, उन्होंने वही विद्या प्रैक्टिस की है, अद्वैत उसी परंपरा में आके श्री विद्या साधना करके उनको सिद्धि मिली। उसके बारे में कथा भी बोलते हैं वो, इसी में बताऊंगा आगे चल के। और क्या कहते हैं ये जो अवधूत बाबा, श्री विद्या इज द अल्टीमेट साधना। मतलब आप इफ यू वांट टू रियलाइज द वांट टू नो व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रूथ, श्री विद्या इज द अल्टीमेट नॉलेज, इज द अल्टीमेट प्रोसेस टू अंडरस्टैंड द एब्सोल्यूट ट्रूथ। अगर आपको वो परम सत्य क्या है उसको जानना है, तो जो रास्ता है उसको कहते हैं श्री विद्या। तो श्री विद्या ही प्रैक्टिस, श्री विद्या की साधना के द्वारा, संभवी विद्या, श्री विद्या वैसे ही बोलते हैं वो, शिव जोग को ही बोलते हैं। तो शिव जोग, संभवी साधना, श्री विद्या, वो एक ही जैसा यूज करते हैं, वही उनका प्रोसेस है, जोगी प्रोसेस है। तो ये सब करने के द्वारा आप वो परम सत्य को प्राप्त करोगे। परम सत्य क्या, आप शिव बन जाओगे। जैसे मैं शिव बन गया हूँ, मेरे साथ पार्वती है, मेरा गणपति बेटा है मेरा, ऐसे तुम्हारी सब मिल जाए। और तुमको और क्या मिलेगा? और ये उसका कैसे प्रोसेस क्या है? पहले जागृत अवस्था होता है, देन कम स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति आती है, तुरीय, देन कम्स तुरीय अवस्था। इन द तुरीय अवस्था, व्हेन यू एंटर इनटू द तुरीय अवस्था, समाधि अवस्था, देन देयर you will realize the Shiva Shakti and you will become like Shiva. There are 4 stages of in yogic process. Jagrata means when we are awake, we are alert, we are conscious. Shapna, dream like state. हम सोते हैं, पहले हम जागृत रहते हैं, उसके बाद हम सपना देखते हैं, सोते हैं। सुषुप्ति means ध्यान अवस्था, in a meditative state. And then turiya means samadhi avastha. You are fully absorbed in the ultimate truth. In that turiya level, you will be able to realize your own self. That is called samadhi. Samadhi means samadhi is called in English it is called I forgot the particular word which used for the samadhi. Trance. It is called trance. When you entrance into samadhi, in the spiritual trance, spiritual consciousness, there you can understand. You will get the Brahma ज्ञान. वो आपको सब तरह के ज्ञान मिल जाएगा और आपने आपका जो ओरिजिनल तुम्हारी जो पोजीशन है वो भी तुमको रियलाइज हो जाएगा, सब कुछ ज्ञान मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड समाधि। तो ये जो समाधि बाबा हैं, ये कहते हैं जो समाधि है ये शिव जोग स्टेट, उसको कहते हैं शिव जोग स्टेट अकॉर्डिंग टू अवधूत बाबा। देयर यू विल गेट व्हाट एवर यू लाइक। और मजे की बात है, द मोस्ट फनीएस्ट थिंग इज, मजे की बात ये है, बाबा कहते हैं कि जब आप समाधि अवस्था में चले जाएंगे, वहाँ से आपको सिद्धि मिल जाएगा। यू विल बिकम परफेक्ट, यू विल बिकम ए सिद्ध परफेक्ट योगी, यू विल गेट मिस्टिक पावर्स इन दैट स्टेट शिव जोग। व्हाट एवर यू desire your family welfare, you desire wealth, you want a beautiful wife, you want prestige and status in society, whatever you want, whatever material desire you want, in that samadhi state, in Shiva Yoga, when you become a siddha, you will get everything. आप समझ रहे हैं? भारत में हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल है स्पिरिचुअल लाइफ में
कि हम संसार को त्याग करके उस परम सत्य को हम पाना चाहते हैं। उसके लिए लोग सब कुछ छोड़ के सन्यासी बन जाते हैं, संसार को त्याग देते हैं और तब साधना करके वो सिद्धि प्राप्त करते हैं। जनरली हम यही समझते हैं। साधु संत संसार को त्याग कर देते हैं। दे रिनाउंस देयर फैमिली लाइफ, मटेरियल लाइफ, सोशल लाइफ, एवरीथिंग, देयर मनी, वेल्थ, एवरीथिंग दे रिनाउंस। दे बिकम फकीर, फकीर बन जाते हैं, साधना करके समाधि प्राप्त भगवान में लीन हो जाते हैं या कहीं भी जाते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल है, जनरली यही वैदिक सनातन धर्म है। ये जो बाबा हैं, अवधूत बाबा, ये सिखाते हैं कि जो जब तुम समाधि में चले जाओगे, वंस यू विल बी एबल टू एंटर इन द समाधि अवस्था, इन द स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, according to in Shiva state, in that state whatever you desire it will come true. जो तुम उस समय चाहोगे, मतलब समाधि में भी मेरे अंदर डिजायर है, तभी तो मैं चाहूँगा कि मुझे धन मिल जाए, मेरे परिवार में सुख शांति हो, मुझे खूबसूरत लड़की मिले शादी करने के लिए, जो चाहूँ एवरीथिंग विल गेट। समाधि में इसको मिलेगा। मतलब मैं समाधि करूँगा, योगा प्रैक्टिस करूँगा, मुझे मेरी खूबसूरत पत्नी के लिए, धन दौलत के लिए, समाज में प्रतिष्ठा और नाम शोहरत इज्जत कमाने के लिए, जो चाहिए आदमी को, जो चाहिए इस दुनिया में, जो मेरा डिजायर है, अच्छा खाऊंगा, कपड़ा पहनूंगा, बड़े बंगलों में रहूँगा, जो कुछ मुझे चाहिए वो समाधि में जाके मैं हासिल करूँगा। मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई हैव कम कॉन्टैक्ट विथ दिस टाइप ऑफ फिलोसफी, डिजायर एंड एब्सोल्यूट फिलोसफी। जैसे रविशंकर था ऐसे ये भी है। मतलब मुझे मटेरियल डिजायर चाहिए। जनरली हमारे हिंदू लोग क्या करते हैं, उनके मन में कोई डिजायर रहता है, कोई पैसा चाहते हैं या खूबसूरत स्त्री उनको चाहिए, या कोई पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, जो भी उनको, चाहे बीमारी से वो ठीक होना चाहते हैं, नौकरी चाहिए, कुछ भी चाहिए। जनरली अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, उसका एक प्रोसेस है, वो मिलता है। लेकिन ये एक अजीब बात है कि ये बाबा बोलता है कि वट एवर यू वांट, जो मटेरियल आप हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी आप चाहते हैं, आपको समाधि में एंट्री, मैं ये योग प्रैक्टिस करूंगा, समाधि में जाऊंगा, वहां जाने के बाद मैं डिजायर करूंगा मुझे ईश्वर मिल जाए, समाधि में ईश्वर मुझे मिलेगा। जब मैं शिव बन जाऊंगा तो उस समय जो चाहूंगा मुझे मिल सकता है, धन की वर्षा होगी, वो ऐसा बोलते हैं। तो ये कितना बड़ा फ्रॉड है। ये आदमी कहाँ भगवान में सब कुछ छोड़ के भगवान में लीन हो जाना, संसार को त्याग कर देना। जोगी लोग तो जंगल में नंग धड़ंग रहते हैं, कौपी नहीं पहनते हैं, कुछ खाते भी नहीं है, कुछ सूखा पत्ता वत्ता खा के जंगल में रहते हैं, क्योंकि भगवान को पाना है, समाधि में जाना है। और ये बाबा सिखाते हैं कि समाधि में जाके तुमको खूबसूरत बीवी चाहिए, धन चाहिए, जो चाहिए समाधि में मिलेगा तुमको, पब्लिक को सिखाते हैं। तो ये देखिए कैसा ये फिलोसफी। समाधि में जो जाओगे तो जो चाहोगे वो होगा, बाबा बोलते हैं, चमत्कारी शक्ति मिलेगा। और ये जो समाधि में जाओगे तो उसमें तुम्हें संसार की भोग मिलेगा और मोक्ष मिलेगा। मतलब वंस यू आर एबल टू एंटर इनटू दैट समाधि लेवल, समाधि अवस्था, वट एवर मटेरियल डिजायर्स यू हैव, the desires will be fulfilled, number one. Number two, if you want to become liberated, you will also become liberated. मतलब एक बार समाधि में चल गए तो पूरा आपको जो चाहिए, भौतिक सुख भी मिल जाएगा, सुख सुविधा मिल जाएगी, और आपको मोक्ष चाहिए, मोक्ष मिल जाएगा। संसार की सुख भी मिलेगा और मोक्ष मिलेगा, दोनों एक साथ आपको मिलेगा। मैं समझ नहीं पा रहा ये कैसे होगा, मेरा ब्रेन तो काम नहीं कर रहा है कि संसार की भोग भी आपको मिलेगा, आपको मोक्ष भी मिल जाएगा, दोनों एक साथ मिलेंगे आप। संसार भगवान की माया शक्ति है, मोक्ष जो है वो माया शक्ति के ऊपर रहता है। माया शक्ति छोड़ेंगे तो मोक्ष प्राप्त होता है। बाबा कहते हैं आपको समाधि में दोनों मिलता है, संसार की भोग वासना, सारे भोग आपको मिल जाएंगे, मोक्ष मिल जाए, दोनों आपको मिल जाएंगे, आप शिव बन जाएंगे। शिव जी जैसे कैलाश में रहते हैं, उनकी पत्नी है, गणपति बेटा है, कार्तिक बेटा है, शिव की गण भी, उनके भी सब नौकर भी हैं, शिव बाबा हैं, लेकिन उनका फैमिली वगैरह है। तो बाबा को संसार की भोग भी है, पत्नी साथ में रहती है, और बाबा जोगी हैं, सांप ओढ़ते हैं, त्रिशूल पकड़ते हैं, घूमते रहते हिमालय में, तो जोगी भी है, भोगी भी है। तो ये जो अवधूत बाबा हैं, इनका भी पत्नी है, एक बेटा है, वो सब ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, प्रचार करते हैं, जोगी भी हैं, भोगी भी हैं। तो तुम उनकी दिखाई हुई रास्ते पे चलोगे, बाबा के रास्ते चलोगे, तो तुम भी जोगी बन जाओगे, भोगी बन जाओगे, तुमको सब कुछ मिल जाएगा संसार में, तो मोक्ष भी, मुक्ति भी मिल जाएगी, सब कुछ एक सब हो जाएगा तुम्हारा, कुछ बाकी बचेगा नहीं। उससे भी और एक बहुत बड़ी बात बाबा बोलते हैं, लॉर्ड कृष्ण वाज ए शिव जोगी।
पहले वो कोई बोल चुके नारायण जी पहले बेवकूफ़ थे, लॉर्ड नारायण विष्णु भगवान है, वो पहले बेवकूफ़ थे, उनको कुछ पता नहीं था ज्ञान। माता भगवती ने उनको साधना, उनको आदेश दिया कि तुम मेरी साधना करो। विष्णु भगवान साधना किए, उन माता भगवत से दीक्षा लिए, तभी भगवान विष्णु को ज्ञान प्राप्त हुआ। ये लॉर्ड कृष्ण जो हैं, जो परम पुरुष हैं, वो भी शिव जोगी, जो महाभारत जो द्वापर युग में भगवान कृष्ण आए थे, कितने राक्षसों को मारे, कितने बड़े बड़े युद्ध जंग जीते, लड़ाई जीते, सब युद्ध करके भगवान की वजह से सारे राक्षसों को भगवान मारे थे। द्वारिका में इतने बड़ा राज्य स्थापना किया था भगवान, जो भी कुछ किए उस समय जो द्वापर युग में, वो सब, वो शक्ति, वो ज्ञान, वो कहाँ से आया, वो पावर कहाँ से आया? भगवान कृष्ण ने वो ये जो श्री विद्या है, संभवी विद्या, ये जो शिव योग है, इसी को साधना किए थे, योग साधना करके ये उनको मिला था। इससे बड़ा फ्रॉड, इससे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात, मूर्खता, फॉलिसनेस, ये इस तरह की बाबा ही बोल सकते हैं कि जागी वासुदेव है और ये वाला इस शंकर है, रविशंकर, और ये वाला यही लोग बोलते हैं। भगवान साधना करके सब, भगवान कृष्ण जो जो परम पुरुष हैं, जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वही रहते हैं अकेले, सब कुछ उन्हीं से आता है। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री माता, ये सब उन्हीं के शक्ति हैं, सब उनके अंडर में काम करते हैं अकॉर्डिंग टू बोनाफाइड वैदिक स्क्रिप्चर्स। हमारे सनातन धर्म को हमको सिखाए हैं, हमारे आचार्य हमको सिखाए हैं, भगवान एक है, वो कृष्णा है, आदि भगवान है, सब कुछ उनके अंडर में चलता है। वो उनको जो शक्ति मिली, वो ये श्री विद्या, भगवान तपस्या करके, योग साधना करके उनको वो शक्ति मिली। ये मतलब ऐसा, इसको आप ऐसा समझें, जो सूरज में जो शक्ति है, सूर्य, सन, सुबह उठते हैं तो सन रेज होता है, भगवान सूर्य भगवान आसमान में आते हैं, उनका सूर्य किरण आता है, धूप आता है। पहले सूर्य जो प्लैनेट है, सूर्य भगवान जो थे, वो उनका जो प्लैनेट था वो ब्लैक था, उसमें कोई शक्ति नहीं थी, कोई रोशनी नहीं थी, एक काला रंग का एक प्लैनेट था। सूर्य भगवान बिल्कुल जलने की क्षमता उनमें था नहीं। तो उन्होंने फिर क्या करेंगे, उनको किसी ने बता दिया, कोई गुरु ने, ऋषि ने बता दिया, तुम भगवती माँ की श्री विद्या जो है उनकी उपासना करो, भगवती माँ को तपस्या करो, वो तुमको श्री विद्या देंगे। जब तुम श्री विद्या हासिल कर दोगे, तुम्हारी बात जलने की जो क्षमता है, बर्निंग कैपेसिटी है, वो तुम्हारी अंदर आ जाएगा। तो सूर्य देवता भगवती माँ की तपस्या किए, माँ प्रसन्न होकर तुमको वरदान दिए। उसी दिन से जो सूर्य प्लैनेट है, सूर्य भगवान है, वो जल रहे हैं और फिर विश्व को आलोक प्रदान कर रहे हैं, प्रकाश प्रदान कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई बाबा बोले तो उसको क्या करना चाहिए? उसको चप्पल से पिटना चाहिए। उसके अलावा मुझे कोई और कुछ रास्ता तो दिखाई नहीं देता है। तो ठीक उसी तरह से वो बोल रहे हैं, मान लीजिए सूर्य भगवान भी अगर भगवती माँ को तपस्या करने के बाद उनके अंदर वो जलने की शक्ति आई, मान उसको सच भी मान ले, लेकिन ये कहना कि भगवान कृष्ण तपस्या करके उनको जो परम परमेश्वर हैं, जो सच्चिदानंद हैं, आदि अनादि हैं, सब कुछ उनसे आया है। अरे हजारों लाखों करोड़ों ब्रह्मा, बड़े बड़े हमारे शास्त्रों में वर्णन है, हमारी जो यूनिवर्स है, जो मटेरियल यूनिवर्स है, यहाँ के जो ब्रह्मा है उनके 4 सर है। In this universe, our Brahma has 4 heads. ऐसे ऐसे यूनिवर्स हैं जहाँ ब्रह्मा जी हैं, उनकी करोड़ों सर हैं, लाखों सर हैं, करोड़ों हैं। हमारा शिव जी, उनको पंचमुखी शिव जी का 5 मुख भी कभी कभी कहा जाता है, ऐसे मंदिरों में है। ऐसे ऐसे ब्रह्मांड है, शिव जी का करोड़ों सर हैं। क्यों? क्योंकि उस यूनिवर्स को चलाने के लिए, टू मैनेज दैट यूनिवर्स, उस यूनिवर्स चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, उसमें एक सर में, उसको 1 करोड़ सर में या 5 करोड़ या 10 करोड़ सर होगा, उसको आप चला सकेंगे। तो कई यूनिवर्स में ब्रह्मा जी, उनका 1 करोड़ सर है, 5 करोड़ सर है, 10 करोड़ सर है, 50 करोड़ सर है। उसको ये ब्रह्मांड को चलाने, इतने बड़े बड़े यूनिवर्स हैं। हमारा जो यूनिवर्स है सबसे छोटा है, उसको चलाने के लिए 4 सर चाहिए। हमारी जो ब्रह्मा है उनका 4 सर है, उसी में वो मैनेज कर लेते हैं। तो सारे ब्रह्मा शिव सब भगवान की, द्वारिका में जो भगवान राजा थे, भगवान कृष्ण, ये शास्त्र में वर्णन है श्रीमद् भागवत में। एक बार ब्रह्मा जी गए थे
हमारे जो ब्रह्मा इस प्लानेट के किसी काम की वजह से भगवान कृष्ण को जब द्वारिका में थे तो उनका दर्शन के लिए आए थे। तो ब्रह्मा जी के मन में अहंकार था कि मैं ब्रह्मा हूँ, तो भगवान उनके अहंकार तोड़ने के लिए उनको वो दृश्य दिखाए थे। तो ब्रह्मा जी देखे कि बड़े बड़े शिव, मतलब उनकी ब्रह्मा जी के साइज से जो 100 गुण, 1000 गुण, लाखों गुण बड़े थे, उनका आकार था, फिजिकल बॉडी था। और उनकी किसका 1,10,000 सर है, किसका 1,00,000 सर है, किसका 1 करोड़ सर है, बड़े बड़े ब्रह्मा। और ये तो ब्रह्मा तो चींटी से भी छोटे लग रहे थे उनके सामने, जैसे हिमालय के सामने कोई चींटी जा रहा है, हिमालय पर्वत के नीचे। वो आके से भगवान को प्रणाम कर करके पूछ रहे थे, प्रभु कैसे हैं आप, कैसे हैं, सब ठीक है, प्रणाम कर रहे थे। तो भगवान उनको पूछे कि सब मैनेजमेंट ठीक से चल रहा है, कैसे हैं, कोई राक्षस आपको तकलीफ तो नहीं दे रहे? नहीं सब प्रभु सब ठीक चल रहा है। भगवान की माथे पे चरणों में माथा टेक के सब फिर भगवान प्रणाम करके सब जाते थे। वो आए दर्शन करके, ये सब ब्रह्मा जी देख रहे हैं। ये वर्णन है भागवत में। अनंत कोटि ब्रह्मांड कहते हैं ना, सारे ब्रह्मांड भगवान भी सब विष्णु भगवान की रोम से निकलते हैं। ये जो रोम है यहाँ से वहाँ से भगवान की रोम से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। ये ब्रह्म संहिता में इसका वर्णन है। तो वो कृष्ण भगवान पहले मूर्ख थे, उनको ज्ञान नहीं था। वो भगवती माता की तपस्या करने के द्वारा, श्री विद्या साधना करने के द्वारा उनको भगवत्ता जो शक्ति है, भगवान की शक्ति उनको मिला है। तो ये कितने बड़ा पाखंड है ये लोग समाज में फैला रहे हैं। तो इसी से आप अंदाजा कर सकते हैं कि भारत की, इस देश की आज जो सिचुएशन है, आज जो हिंदुओं का, सनातन धर्म का अस्तित्व खतरे में है, तो क्यों है? ये इसी वजह से है। उसका रूट कॉज क्या है? ये ही है। इस तरह की पाखंड, इस तरह की राक्षस हमारे समाज में गुरु बन के बैठे हुए हैं। और जो डेमोक्रेसी है, कुछ भी बोल सकते हैं, जो मन में आया वो बोलते हैं। तो ये गया। तो एक और क्या वो बोलते हैं, जो मैं अभी ज़्यादा एपिसोड को बढ़ाऊंगा नहीं, शॉर्टकट में जितना जरूरी है उतना बोल दूंगा आपको। शिव बिकम्स ब्रह्मा विष्णु रुद्र। बाबा बोलते हैं, शिव बाबा, शिव वही ब्रह्मा बनते हैं, विष्णु बनते हैं, और रुद्र बन के ब्रह्मा बन के सृष्टि करते हैं, विष्णु बन के पालन करते हैं, रुद्र बन के ध्वंस करते हैं। रियलिटी क्या है? भगवान विष्णु शिव बनते हैं, ब्रह्मा बनते हैं और पालन करते हैं। नारायण विष्णु बनते हैं, ब्रह्मा बनते हैं, शिव बनते हैं। विष्णु बन के पालन करते हैं, ब्रह्मा बन के सृष्टि करते हैं, रुद्र बन के ध्वंस करते हैं। ये हम शास्त्र में पढ़े हैं। बाबा बोलते हैं नहीं, वो शिव जो है वही विष्णु बने हैं और ब्रह्मा बने हैं, पालन करते हैं। ये बाबा ये उल्टा फिलोसफी पढ़ा रहे हैं। बाबा और भी कुछ बोलते हैं, जैसे हमारा बॉडी हुआ, हमारी चैतन्य महाप्रभु जो हमको जो परफेक्ट 100% परफेक्ट स्पिरिचुअल साइंस दिए के गए हैं, उनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू चैतन्य महाप्रभु, हमारी जो बॉडी है, ए लिविंग एंटिटी, जीवात्मा, हैज 4 टाइप्स ऑफ बॉडी। स्थूल बॉडी, ये पंच महाभूत से जो बॉडी बना हुआ है, दिस फिजिकल बॉडी मेड ऑफ 5 ग्रोस मटेरियल एलिमेंट्स, पंच महाभूत से बना हुआ है। उसके अंदर सूक्ष्म बॉडी है जो मन बुद्धि चित्त अहंकार से बना है, जो स्वर्ग नरक में जाता है, सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी उसको कहते हैं। उसके अंदर ब्लैडर जैसा काम करता है, जैसे फुटबॉल में ब्लैडर होता है। सटल बॉडी के बाद एक होता है आत्मा रहती है। और ये बात बहुत लोग जानते नहीं है कि आत्मा जो है उसका भी एक स्पिरिचुअल बॉडी है। आत्मा का साइज कितना छोटा है, टिप ऑफ द हेयर को अगर 1000 पीसेस आप करेंगे, काटेंगे, बाल की जो अग्रभाग टिप है उसको जो अगर आप 1000 भाग में डिवाइड करेंगे, उतना साइज हमारे शास्त्र में कहा गया आत्मा का, उतना साइज है। लेकिन फिर भी उस साइज में भी आत्मा का एक बॉडी है, स्पिरिचुअल बॉडी है। तो एक होता है स्थूल बॉडी, एक होता है सूक्ष्म बॉडी, एक आध्यात्मिक, एक स्पिरिचुअल बॉडी आत्मा का होता है। ये 3 बॉडी हमारा रहता है। जनरली यही हमारा परफेक्ट अकॉर्डिंग टू जो हमारा वैदिक स्पिरिचुअल साइंस है, ये हमको सिखाता है। अब बाबा क्या बोल रहे हैं कि एक स्थूल बॉडी है, एक इमोशनल बॉडी है, एक सटल बॉडी है, एक स्पिरिचुअल बॉडी है, एक ज्योतिर्मय बॉडी है। मतलब आपका एक पंचमहाभूत, स्थूल बॉडी पंचमहाभूत से बना है, एक इमोशनल बॉडी भी है, उसको मेंटल बॉडी वो कहते हैं इंग्लिश में। एक सटल बॉडी, सूक्ष्म बॉडी, और सूक्ष्म बॉडी मुझे पता नहीं कैसे, मेंटल बॉडी कैसे बना, सूक्ष्म बॉडी कैसे बना। सूक्ष्म बॉडी के बाद में एक स्पिरिचुअल बॉडी आता है। स्पिरिचुअल तो आत्मा तो स्पिरिचुअल हो गया,
आत्मा का तो एक बॉडी है जैसे मैं आपको बताया, लेकिन उसके ऊपर भी एक बॉडी है, ज्योतिर्मय बॉडी। तो इसका मतलब जो स्पिरिचुअल बॉडी आत्मा है वो भी किसी तरह का कोई बंधन में है, वो भी उसमें कुछ भौतिक चीज़ें हैं उसमें। तो इसलिए उसका ऊपर का स्टेज ज्योतिर्मय बॉडी, और ज्योतिर्मय बॉडी असली बॉडी है। ये 4-5 ये फिलोसफी बाबा को कहाँ से मिला, मुझे तो आज तक के नहीं मिला कि मैंने किसी, आज तक मैंने करीब करीब सभी वैष्णव आचार्य, सभी बड़े बड़े जो हुए रिलीजियस लीडर हुए उनकी किताब तो मैंने पढ़ा है, इंक्लूडिंग हमारी जो 4 स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटीज़ हैं और जगत गुरु शंकराचार्य फिलोसफी है, मैं तो सब पढ़ा हूँ। मुझे तो आज तक कोई आचार्य या कोई गुरु इस तरह की बात नहीं बोले हैं। ये पहली बार ये अवधूत जी ये बोलता है, इमोशन मनोमय बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, ज्योतिर्मय बॉडी, पता नहीं कहाँ से सीखा वो। उसके बाद और एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, उसको आनंदमय कोश कहते हैं। हमारे ये भी एक साइंस है। अन्नमय कोश कहते हैं, ज्ञानमय कैसे किसे कहा जाता है, आनंदमय कोश क्या है। एक हमारी एक डिफरेंट स्टेजेस है ह्यूमन लाइफ में। कोई पहले अन्नमय कोश होता है, फिर प्राणामय कोश में ट्रांसफर होता है। जब जितना साधना करते जाएंगे आपका कॉन्शसनेस डेवलप होता जाएगा। ये कॉन्शसनेस है सब, कोश मतलब कॉन्शसनेस। जैसे पशु गाय बकरी कुत्ते बिल्ली सब के अन्नमय कोश में रहते हैं, उनको खाने भूख लगती है, सिर्फ प्रकृति के हिसाब से रहते हैं। प्राणामय कोश क्या है, जो मनुष्य उस कैटेगरी में आ जाते हैं, वो खाते हैं पीते हैं सेक्स करते हैं सब करते हैं, पशु जैसा होते हैं मनुष्य भी, लेकिन उनमें कुछ एक मोरालिटी होती है मनुष्य का, मतलब वो कुछ उनके थोड़ा ज्ञान ज़्यादा है। वो समझते हैं कि मैं अपने लिए मुझे घर बनानी है, मेरे लिए मुझे अपने लिए कपड़ा भी बनना चाहिए, कपड़ा बनाते हैं। मुझे सामान उठाने में तकलीफ़ होता है, मुझे एक बैलगाड़ी चाहिए, घर में बैल रखूँगा तो खेती करने में आसान होगा। तो आदमी ये सब सोचता है, कुत्ते भी ये सब नहीं सोचते हैं, वो कपड़ा वपड़ा के बारे में सोचते नहीं हैं। तो अन्नमय कोश से प्राणामय कोश में मनुष्य आता है, उसके एक डेवलप कॉन्शसनेस है। प्राणामय कोश के ऊपर मनोमय कोश आता है। ये जो बड़े बड़े साइंटिस्ट फिलोसोफर ये जो होते हैं रिसर्च वगैरह करते हैं, ये सब अन्नमय कोश मनोमय कोश में होते हैं। ये थोड़ा अपना ब्रेन यूज़ करते हैं। हमारी सोसाइटी में जनरल लोग नौकरी करते हैं, पेट पालते हैं, काम धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन इसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट भी होते हैं, फिलोसोफर होते हैं। कुछ ऊपर सोचते नहीं, दुनिया में कुछ शक्ति है, नेचर कैसे, यूनिवर्स कैसे काम करता है, उसमें अपना दिमाग लगाते हैं। तो वो अन्नमय कोश में होते हैं। ज्ञानमय कोश में जो लोग आध्यात्मिक साधना में लग गए, उनको ये पता चल गया है कि हम ये शरीर सब कुछ नहीं, शरीर तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारा क्या, हमको शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा, तो मैं कौन हूँ। तो समथिंग एल्स एग्जिस्ट, आई एम नॉट ओनली द बॉडी, समथिंग विच इज़ बियॉन्ड द बॉडी स्टिल एग्जिस्ट इन दिस मटेरियल यूनिवर्स। तो उनको कुछ शक होता है कि कुछ और एनर्जी है जो इस बॉडी के अलावा भी कुछ दूसरा है, बॉडी से अलग है। तो उस साधना में लगे हैं। कोई जो साधना करता है, कोई ज्ञान साधना करता है, कोई ध्यान साधना करता है, कोई भक्ति साधना करता है, साधना में वो लग गए हैं। कम से कम ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, आई एम नॉट द बॉडी आई एम सोल, ये उनको बारे में कुछ उनको जानकारी होता है, उनके मन में डाउट होता है, वो इसके बारे में खोज करते हैं। आध्यात्मिक जीवन जीने में वो लग गए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। दे हैव अडॉप्टेड सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस टू रियलाइज, टू डिस्कवर समथिंग आत्मा और सम स्पिरिचुअल एनर्जी विच इज बियॉन्ड मटेरियल नेचर। तो इसकी खोज में लग गए हैं। तो उनको वो किस स्टेज में है, वो ज्ञानमय कोश है। उसके बाद आता है विज्ञानमय कोश, उसको आनंदमय कोश भी कहते हैं। विज्ञानमय कोश दैट लिविंग एंटिटी व्हेन ही अचीव परफेक्शन, जब जीवात्मा इस जगत से संपूर्ण मुक्त हो जाता है, जिसको ब्रह्मलीन होना है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, जिसको ब्रह्मलीन होना है वो लीन हो गया, वो मुक्त हो गया। जो भक्त है वो जाता है कि भगवान विष्णु के धाम जाना चाहता है। द डिवोटी वांट्स टू गो टू हिज ओरिजिनल होम वैकुंठ लोक। तो वो वहाँ उसका मुक्ति मिल गया है। वो जिनको कहते हैं परमहंस जोगी, जो इस दुनिया में रहते हैं लेकिन रह के भी वो मुक्त होते हैं। इस संसार का कोई जो माया शक्ति है उन पर इफेक्ट नहीं करता है, ऑलरेडी मुक्त हो चुके हैं। उनको परफेक्ट नॉलेज हो गया, वो आत्मा का दर्शन हो गया है, भगवान का दर्शन हो गया है। मीराबाई जैसे लोग, गोस्वामी तुलसीदास, हरिदास जी, सूरदास जी, हमारे बड़े बड़े वैष्णवाचार्य, जो परमहंस लोग हैं, शरीर में वो देखते थे कि हमारे साथ हैं, वृंदावन में रहते हैं, लेकिन वो शरीर से मुक्त हो चुके थे। तो भगवान की लीला को डायरेक्ट दर्शन करते थे समाधि में। तो वो आनंदमय रहते, उनके ऊपर माया शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होता है, आनंद में रहते। वो उनको कहते हैं आनंदमय कोश। ये हमने
जनरली पढ़े हैं, लेकिन ये जो बाबा हैं इसको कम्प्लीटली गलत तरीके से जो उसका डेफिनेशन देते हैं। अगर मैं बाबा क्या डेफिनेशन दिए हैं उसके बारे में अगर मैं बोलूँगा तो ये एपिसोड तो कम से कम 3-4 घंटे का हो जाएगा। तो बाबा बिल्कुल अलग ढंग से इसको डिस्क्राइब करते हैं, इसका कोई मेल नहीं है। रॉन्ग ही इज डिस्क्राइबिंग ऑल दिस हाईएस्ट स्पिरिचुअल तत्व जिन्हें कम्प्लीटली डिस्टोर्टेड एंड रॉन्ग वे। उसके बाद बाबा क्या करते हैं और एक मजे की बात है, बाबा बोलते हैं स्थूल शरीर गिविन में पितरों, हमारा ये जो बॉडी है ये पितरों के द्वारा, पिता मतलब हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे पिताजी, उनके दादा परदादा जो मर के चले गए हैं, ये बॉडी उनके द्वारा दिया गया है। मेरा जो बॉडी है, रियलिटी क्या है, स्पिरिचुअल साइंस क्या कहता है, ये बॉडी मुझे मिला कि मेरा जो प्रारब्ध कर्म है, मैं पूर्व जन्म में जैसा कर्म किया था, मेरे कर्म के हिसाब से मुझे इस जन्म में ये शरीर मिला हुआ है। ये मेरा कर्म है, मुझे शरीर मिला है। जमराज जी जो डिसीजन लेते हैं, भगवान की आदेश से जमराज जी ये बॉडी हमको मिलता है। जो मटेरियल नेचर है, दुर्गा देवी जी हैं, तो हमको ये एक पर्टिकुलर बॉडी देता है कि तुम्हारा कर्म ऐसा रहा, इस जन्म में तुमको ऐसा शरीर मिलेगा, इस तरह के पेरेंट्स फैमिली मिलेगी, यहाँ तुम जाओ कर्म का फल भोग करो। इस हिसाब से बॉडी आया। मुझे पितर क्या देंगे, जो मेरे पिताजी, मेरे दादाजी परदादाजी, वो तो उनकी कर्म के हिसाब से उसको पुण्य किए थे, पाप किए होंगे, पुण्य किए होंगे तो नरक में होंगे, पाप किए होंगे तो, या पुण्य किए होंगे तो स्वर्ग में होंगे, पाप के नरक में होंगे। वो उनमें क्या क्षमता है कि मुझे शरीर देंगे। कर्मों के अनुसार फल भगवान देते हैं। भगवान के आदेश से, भगवान की जो एजेंट हैं, माया देवी, दुर्गा देवी, जमराज, ये हमारे कर्मों के अनुसार हमको पनिशमेंट देते हैं या रिवार्ड देते हैं, या तो हमको बॉडी देते हैं। सब कुछ भगवान के आदेश से होता है, सृष्टि चलती है। ये बॉडी भगवान के आदेश से मुझे मिला, इस आदमी को ऐसे शरीर मिलेगा, कर्म का फल। इसमें पितरों की क्या उनकी क्वालिटी है, पितरों क्या दे देंगे, वो तो खुद ही पता नहीं कहाँ नरक में होंगे। लेकिन ये बाबा बोलता है कि हमको ये बॉडी पितरों की तरह, पितरों के द्वारा दिया गया है। तो ये कितना बड़ा फिल्म, मतलब देखिए फ्रॉड है ये। तो और एक बाबा जी बोलते हैं, जैसे जागी वासुदेव ईसा फाउंडेशन को बोलते हैं कि हमारे शरीर में सेल्स होते हैं, करोड़ों करोड़ सेल्स होते हैं। तो ये जो अवधूत बाबा है ये बोलता है कि हमारे शरीर में 50 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। टिश्यू सेल्स मतलब जो ब्लड सेल्स होते हैं ना, DNA RNA, तो हमारे बॉडी में 50 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। और ये जो सेल्स होते हैं उनके अंदर मन भी होता है, उनका अपना भी सोच है। हम भी कहते हैं कि सेल्स के अंदर आत्मा है, लेकिन वो इस बॉडी को जितने दिन के लिए रहना है, इस बॉडी को चलाने के लिए वो आए हैं। वो अपनी मनमानी ढंग से काम नहीं करेंगे। उनका ड्यूटी है कि इस बॉडी को चला, जितना दिन मैं एक आदमी हूँ, आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मुझे शरीर मिला है कर्मों के हिसाब से, और मुझे 100 साल, मतलब 80 साल जीना है। 80 साल तक बॉडी रहेगा, जवान होगा, बूढ़ा होगा, जो भी होगा। ये जो सेल्स हैं उनका ड्यूटी है तुम इतने दिन तक रहो। कितने सेल्स मर जाते हैं, न्यू सेल्स आते हैं। ये बहुत बड़ा डीप साइंस है। इतना हमारा ब्रेन काम नहीं करेगा। हमारे जो गुरु जी स्पिरिचुअल मास्टर हैं हमको बोलते थे, ये नाखून है, माई स्पिरिचुअल मास्टर वॉज सेइंग दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई माई नेल इज ग्रोइंग। मेरे जो नाखून बढ़ रहा है वो कैसे बढ़ रहा है, मैं समझ में नहीं आता है। इट इज इनकंसीवेबल पावर, इनकंसीवेबल एनर्जी, इसको समझना मुश्किल है। और कैसे सेल काम करती है, उसके अंदर, सेल के अंदर आत्मा कैसे काम करती है, क्या समझेंगे। उनके अंदर मन है, आत्मा है, सेल में भी आत्मा होता है, लेकिन वो सब, ये जो मैं, जो द किंग, आई एम द किंग ऑफ दिस बॉडी, मैं मालिक हूँ इस बॉडी का, आत्मा मालिक है इस बॉडी का, तो मेरे अंडर में अगर आत्मा छोड़ के चला जाएगा, बॉडी सड़ जाएगा, मर जाएगा, बाकी कोई सेल कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं कि जब 50 करोड़ सेल हैं तो आपस में मीटिंग करके, नहीं, वो आत्मा तो, जो मेन आत्मा, वो तो छोड़ के चला गया। तो ये अच्छा है, ये काम करते हैं, हम इकट्ठा होकर फिर से जिंदा कर देते हैं, ये बॉडी को जवान कर देते हैं, फिर एंजॉय करेंगे। बॉडी कुछ अच्छा रसगुल्ला खाएगा, गुलाब जामुन खाएगा, तो हमको भी थोड़ा थोड़ा मिलेगा, इसको जिंदा कर देते हैं। ऐसा होता है, एक आत्मा मर गया, एक आदमी मर गया, दोबारा जिंदा होता है। उस समय जो बॉडी में सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको जिंदा कर देते हैं फिर। तो सेल में मन हो, बुद्धि हो, आत्मा हो, उसे क्या लेना, क्या फर्क पड़ता है। तो ये बाबा इस तरह की फिलोसफी और टीचिंग्स देते हैं। सेल होता है, उनमें मन होता है, उनमें आत्मा होता है, ये होता है, वो होता है, उनका भी कुछ चलता है, ड्रामा चलता है। तो ये और एक जो लास्ट पॉइंट है
बाबा जी अवधूत बाबा बोलते हैं, यू कैन क्रिएट संसार बाय योर सिद्धि अध्यात्म। मतलब बाबा यहाँ तक कहते हैं कि आप जब मेरी दिखाई हुई रास्ते पर चल के, जो मैं जो साधना बोल रहा हूँ, श्री विद्या संभवी विद्या, वो विद्या प्रैक्टिस करके जब आप सिद्धि प्राप्त करेंगे, जैसे भगवान ने सृष्टि बनाए हैं तो आप भी सृष्टि बना देंगे। ये जो आसुरी प्रवृत्ति है, दिस टाइप ऑफ डिमोनियक प्रोपेंसिटी, इट एग्जिस्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन। यू विल सी हिरण्यकशिपु, बिग डिमोन्स, ग्रेट डिमोन्स लाइक हिरण्यकशिपु, रावण, भस्मासुर, ये जितने भी बड़े बड़े राक्षस हुए हैं, ये सभी यही ब्रह्मा तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान लेते थे कि मैं मरूंगा नहीं, भगवान को हरा दूंगा, विष्णु को मार दूंगा, मैं अमर हो जाऊं। ये हमेशा इस तरह की तपस्या करके एनर्जी वो वरदान लेते थे और भगवान विष्णु को उनको मार देते थे। फॉर एग्जाम्पल हिरण्यकशिपु, he performed rigorous austerities, satisfied Lord Brahma. Lord Brahma appeared before him. He asked me, give me a boon that I will not die by any human being, any animal, by any aquatics, by any demigod, by any Gandharva, any Kinnara. I will not die by any living entity, in the hand of any living entity in this material case. इस जो भौतिक संसार में जितने प्राणी हैं, किसी के हाथ में मरूंगा नहीं। आई विल नॉट डाई इन द डे टाइम, आई विल नॉट डाई इन द नाइट टाइम। दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा, जमीन में नहीं मरूंगा, आसमान में नहीं मरूंगा, घर में नहीं मरूंगा, बाहर में नहीं मरूंगा। हिरण्यकशिपु, ही गॉट दैट टाइप ऑफ वूम। ब्रह्मा जी को ओके तथास्तु। इतना बचा। नरसिंहदेव अपियर, भगवान नरसिंहदेव आए और टिंके की जैसे टिंका ही करते हैं ना, छील के फेंक देते हैं, फाड़ के फेंक दिए। तो ये जो डिमोनियक मेंटली आसुरी प्रवृत्ति है, ये तब भी था, आज भी ये लोग भी यही है कि बाबा बाबा जोगी ढोंगी जब घूमते हैं समाज में, सिद्धि प्राप्त हो जाओ तो संसार को बना दोगे। घर में रोटी नहीं होगा, बीवी बैठी होगी, कब आएगा आटा लेके, सब्जी लेके, घर में बच्चे स्कूल गए हैं, अभी आके बच्चों को खाना देना है, घर में कुछ नाश्ते के लिए कुछ है नहीं, और ये जाके बाबा की प्रवचन में बैठा होगा और बाबा उसको टीचिंग दे रहे हैं कि तुम ध्यान करके जब शिव बन जाओगे, तुम तो पूरा सृष्टि बना लोगे, तुम राजा बन जाओगे, मतलब भगवान बन जाओगे। कि क्या तुम आलू प्याज कांदे के चक्कर में पड़े हुए हो, घर में सब्जी नहीं है, दाल नहीं है, तेल नहीं है, नमक नहीं है, गैस खत्म हो गया, इलेक्ट्रिक बिल दिया, क्या चक्कर में पड़े? अरे तुम भगवान बन जाओगे, तुम माता लक्ष्मी सरस्वती जैसे तुम तुम्हारी पत्नी बन जाएंगे, जगदम्बा तुम शिव बन जाओगे, तो पार्वती देवी तुम्हारी पत्नी बन जाएंगे। क्या संसार सब कुछ मिल जाएगा, क्या बाकी है? खाली हमारे आश्रम में आओ, मेरी प्रवचन सुनो, डोनेशन दो, मुझे प्रणाम करो, जाओ, मेरी आशीर्वाद से सब कुछ हो जाएगा। ये फिलोसफी है। बाबा और भी कुछ बहुत सारे बात, शून्य से आकाश होता है, आकाश से वायु होता है, शून्य से आकाश होता है। जो स्पिरिचुअल्स है ना, मटेरियल कॉस्मोस कैसे बना, मैंने यहाँ मेरी एपिसोड आप देखेंगे, पिछले एपिसोड देखेंगे, मैंने क्या हम जो स्पिरिचुअल साइंस आपको बताया है मैंने, क्योंकि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, जैसे मेडिकल साइंस होता है, इंजीनियरिंग होता है, ऐसे स्पिरिचुअल साइंस है। महत तत्व से भगवान से प्रधान उत्पन्न, माया शक्ति, माया दुर्गा उत्पन्न हुई, दुर्गा देवी इच्छा की सृष्टि के लिए, उसे प्रधान उत्पन्न हुआ, मैंने प्रधान से महत तत्व हुआ, इसको मैंने डिस्क्राइब किया है, मेरे पिछले एपिसोड आप देखिए। प्रधान से महत तत्व हुआ, महत तत्व से अहंकार हुआ, अहंकार से आकाश हुआ, आकाश से शब्द होता है, शब्द से स्पर्श आती है, शब्द से फिर आकाश हुआ, आकाश से वायु हुआ, वायु से अग्नि, उसका प्रोसेस है। ये क्या बोले, शून्य से आकाश, मतलब सब कुछ शून्य था, उससे आकाश क्रिएट हो गया, आकाश से वायु क्रिएट हुआ। आकाश का गुण है शब्द, शब्द के बाद वायु आता है, आकाश से डायरेक्ट वायु नहीं होता है। तो ये सब बाबा वर्णन करते हैं, शिव से जुड़ो, कर्मनाश करो। भगवान बाबा और बोलते हैं क्या, जब तुम शिव जी से जुड़ जाओगे तुम्हारा सारा कर्म नाश हो जाएगा। जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अहम त्वं सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचः। मेरी आज्ञा से तुम लड़ाई करो, मेरी आज्ञा का पालन करो। अगर तुम पूरी महाभारत में जितने लोगों को तुम मार दोगे, जितना भी करो, उसमें कोई पाप नहीं लगेगा। अगर पाप लगेगा तो मैं उसको पाप से मुक्ति कर दूंगा। क्यों? वो भगवान, मैं सुप्रीम लॉर्ड हूँ, तो मेरी आज्ञा से काम करते हो, पाप नहीं लगेगा।
और पाप लग भी जाए बाई चांस, फॉर एग्जाम्पल, वो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा पाप से। और यहाँ पर मैं आपको एक बहुत 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 गहरी बात बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। इट्स एक्सट्रीमली डीप स्पिरिचुअल मिस्ट्री आई एम गोइंग टू टेल यू। भगवान कृष्ण की भक्ति से या कृपा से ही आपका कर्म का नाश होता है। ओनली बाय द मेर्सी, बाय द विल ऑफ लॉर्ड कृष्ण, योर द रिएक्शन ऑफ कर्म एक्टिविटीज, सिंफुल एक्टिविटीज और पायस एक्टिविटी विल बी डिस्ट्रॉयड। जब तक भगवान कृष्ण नहीं चाहते हैं आपका कर्म का फल नाश नहीं होगा, कोई नहीं कर सकता। भगवान विष्णु भी नहीं कर सकते। भगवान विष्णु भगवान जो है वो भी कृष्ण के नीचे हैं। ओनली भगवान कृष्ण चाहते हैं तो आपका कर्म फल नाश होगा, वही मुक्ति देते हैं। भगवान विष्णु भी मुक्ति नहीं दे सकते आपको। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, दो भाई दो राक्षस थे, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष। एक भाई को हिरण्याक्ष को भगवान ने बराह रूप में हत्या किया, उसको मारा। हिरण्यकशिपु को नृसिंहदेव अवतार लेके मारा। कौन? विष्णु भगवान ने। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु जिसको मारते हैं उसको मुक्ति मिल जाता है। भगवान विष्णु की भक्ति करे या भगवान विष्णु आके गला काट दे, दोनों हालत में उसका फल एब्सोल्यूट होता है, क्योंकि भगवान एब्सोल्यूट हैं। भगवान अगर भगवान आपको आशीर्वाद दे मुक्ति मिल जाए तो मुक्ति मिल जाएगा। भगवान अगर आपकी गर्दन काट दे तो मुक्ति मिल जाएगी। भगवान से आप टच हो जाएंगे वो, क्योंकि भगवान एब्सोल्यूट ऑस्पिशियस हैं, परम पवित्र हैं, सच्चिदानंद है। उन किसी भी हालत में भगवान से कांटेक्ट हो गया तो आप मुक्ति मिल जाएंगे, आपको मुक्ति मिल जाएगी, चाहे वो आशीर्वाद दे या गला काटे। भगवान जिसको मारते हैं उसकी मुक्ति हो जाती है। लेकिन भगवान विष्णु बराह रूप में जब हिरण्यकशिपु को मारे, नृसिंह अवतार में जब बराह अवतार में हिरण्याक्ष को मारे और नृसिंह अवतार में हिरण्यकशिपु को मारे। लेकिन वही हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष फिर रावण कुंभकर्ण बन के फिर दोबारा जन्म लिए त्रेता युग में। अगर भगवान विष्णु उनको मारे, उनको तो मुक्ति हो जानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने फिर क्यों रावण और कुंभकर्ण बन के जन्म हुए, दो भाई फिर जन्म लिए। और रावण कुंभकर्ण जब बने तो उनको मारा किसने? भगवान राम जी ने मारा। रावण को भगवान राम जी ने मारा, कुंभकर्ण भगवान राम जी ने मारा। उनको मुक्ति हो जाना चाहिए था, लेकिन रावण को कुंभकर्ण को मुक्ति नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू वैदिक स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स, हमारे जो वैष्णवाचार्य हमको जो टीचिंग्स दिए हैं, वही रावण वही कुंभकर्ण द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र बन के जन्म हुए, दो भाई शिशुपाल दंतवक्र। तृतीया युग में क्या था? रावण कुंभकर्ण थे, वो फिर जन्म लिए। शिशुपाल हमेशा भगवान कृष्ण गाली देता था, चक्र से भगवान उसको काट दिए, जिसकी 100 गाली हो गया। दंतवक्र के साथ भगवान लड़ाई करके उसे मारे, गुस्से में आया गदा लेके भगवान को मार दूंगा, भगवान उसको मार दिए, लड़ाई करके उसको मारे, दोनों भाई को। जब दंतवक्र किसने मारे? कृष्ण मारे द्वापर युग में। जब दंतवक्र और शिशुपाल को भगवान ने मार दिया तो आपने किसी शास्त्र में पढ़ा है कि शिशुपाल और दंतवक्र उनका पुनर्जन्म हुआ? कि शास्त्र में पढ़े हैं? नहीं पढ़े, आपको नहीं मिलेगा। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु को विष्णु भगवान मारे, उनका जन्म हुआ रावण कुंभकर्ण रूप में। राम जी उनको मारे, लेकिन फिर भी उनका जन्म हो गया शिशुपाल दंतवक्र के रूप में। तो भगवान विष्णु पहली बार मारे, उनको मुक्ति नहीं मिली, तृतीया में मुक्ति नहीं मिला। द्वापर में जो भगवान कृष्ण उनको मारे तब जाके उन दोनों भाई को मुक्ति मिला, 3 जन्म में। कृष्ण भगवान लॉर्ड कृष्ण इज द ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो विष्णु नारायण राम सब उनके नीचे आते हैं। जब तक तो भगवान कृष्ण की आदेश नहीं मिलता, कृपा नहीं होगा, उनकी आदेश नहीं होगा, किसी को मुक्ति नहीं मिलती। तो दंतवक्र जब भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में उनको मार दिया, उसके बाद उनका कभी जन्म नहीं हुआ, वो वैकुंठ धाम चले गए। बाबा क्या बोल रहे हैं? शिवजी से जुड़ो, तुम्हारा सारा कर्म नाश हो जाएगा। बाबा बोलते हैं तो मैं शिवजी से जुड़ूंगा तो मैं खुद ही, वो बाबा तो बोल रहा है मैं खुद ही शिव बन जाऊंगा, और शिव कर्म नाश किया होगा तो मैं शिव बन जाऊंगा, तो फिर मेरा कर्म क्या रहा?
जो भी हो, ये बाबा लोग इस तरह की बात करते हो, क्या बोलते हैं वो ना खुद समझते हैं ना किसी को पब्लिक उसी में ताली बजाता है। ऑनलाइन बी द मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ, साधना करो, सिद्धि प्राप्त करो, तुम भगवान हो जाओगे और तुम खुद सृष्टि बनाओगे, तुम भगवान बन जाओगे, सब कुछ तुम्हारे अंडर में, जो चाहोगे वो कर सकती हो। जितना बड़ा बिल्डिंग बंगलो चाहोगे बंगलो मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, खूबसूरत बीवियाँ मिलेगी, 1000 बीवियाँ रखो, लाख करोड़ों मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड से शादी करो, तो तुम तो भगवान बन जाओगे ना, समाधि में चले जाओगे, यू विल बिकम लाइक शिव, तो भगवान बन जाओगे। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान कृष्ण की द्वारिका में रानी थे, एक 16,108 रानी थे, ऐसे तुम्हारा भी ऐसे हो जाएगा, तुम 32,000 64,000 रानी रख सकते हो, तुम तो सब कुछ कर सकते हो, सब हो जाएगा। और फिर बाबा आत्मा परमात्मा की बात भी करते हैं कि शरीर आत्मा है, परमात्मा से लीन हो जाता है। एक तो बोलते हैं कि साधना कर करके तुम शिव बन जाओगे, फिर बोलते हैं कि आत्मा नाम का कोई चीज़ है, वो तुम परमात्मा से मिलोगे। तो परमात्मा है तो फिर शिव कौन है? मैं आत्मा हूँ, परमात्मा अंदर है, परमात्मा लीन हो जाएगा, लेकिन शिव, फिर शिव कौन बनेगा? साधना करके मैं शिव बन जाऊंगा ना, आप बता रहे हैं, फिर ये आत्मा परमात्मा कहाँ से आ गया? बाबा बोल रहे हैं ऐसे। तो इस तरह से अगर आप इस तरह की जो बाबा हैं, सोकल बाबा, माता जी, बाबा जी, ये जो सब गुरु बन के, जोगी विष्टिक बन के, जो ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करके पूरी वर्ल्ड में जो प्रीचिंग करते हैं, और मेन सबसे जो डेंजरस बात है, ये भगवत गीता, रामायण, महाभारत, हमारे शास्त्र, उपनिषद, इसकी कोटिंग भी करते हैं। गीता में ऐसा कहा गया है, मनु संहिता में ऐसा कहा गया है, उपनिषद में ऐसा कहा गया है, वेद में ऐसा कहा गया है, इस शास्त्र में ऐसा कहा गया है, पुराण में ऐसा कहा गया है, और उसको पूरा टेढ़ा मेढ़ा करके उसका डेफिनेशन देते हैं। ये कोई भी, अगर आप ये जागी वासुदेव, रविशंकर, ये शिव बाबा, ये तीनों को एक जगह बैठा दीजिए, एक स्टेज पे बैठा दीजिए, तीनों को एक सवाल कीजिए, क्या होता है आत्मा, क्या होता है परमात्मा, क्या होता है भगवान, क्या होता है ये वैदिक स्पिरिचुअल साइंस, क्या होता है वैदिक सभ्यता, क्या होता है वर्णाश्रम सिस्टम, क्या होता है महाभारत, क्या होता है रामायण, क्या होता है पुराण, क्या होता है, उनको हम पूछिए। जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है, आत्मा परमात्मा क्या होता है। वो तो आधे घंटे में कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होगा, वो तो ऐसे ही पागल हो जाएगा, बेहोश होकर गिर जाएगा, क्योंकि कोई बाबा का किसी के साथ तो मैच करेगा नहीं। उनका अल्टीमेटली फिर वो क्या, अगर ऐसा किया जाए, सचमुच अगर ऐसा किया जाए, तो बाबा क्या बोलेंगे? उनको भी अपनी इज्जत बचानी है, तो क्या बोलेंगे? नहीं, कुछ नहीं है दुनिया में, सब माया है, सब मिथ्या है, क्या होगा? तुम कुछ भी नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा अंश हो, ध्यान करो, ये करो, और जब समाधि में चले जाओगे तो आत्मा परमात्मा मिल जाएगा, तुम निराकार हो, परमात्मा वहाँ शून्य है, कुछ नहीं है, नथिंगनेस, और ये आत्मा नाम का कोई चीज़ नहीं है, तुम नथिंगनेस मर्ज कर जाओगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, महाशून्य, ओम, खत्म हो जाए खेल। ऐसा कुछ बोलेंगे? तो वही बोल रहे हैं, क्योंकि नॉलेज तो नहीं है, जब कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है, पूरी जिंदगी उनकी स्पेंड देयर एंटायर लाइफ to how I will become a famous personality, how I can establish my own cult, how can I establish my own organization, how can I will become the world famous, गुरु बनूंगा, पूरी दुनिया मेरी चरण छुएगा, मेरा आश्रम होगा, करोड़ों लोग मुझे गुरु मानेंगे, राजा महाराज की तरह मैं से जाऊंगा, ऐसे सब कर दूंगा, तुमको भगवान बना दूंगा, भिखारी बन के आओ, तुमको मैं भगवान करा दूंगा, चिंता मत करो। तो इस चक्कर में वो पूरा उनका जो ब्रेन है, इस चक्कर में रहता है, शास्त्रों की गहरी अध्ययन करना, उसकी साइंस को समझना, ये इसका टाइम कहाँ मिलता है इन लोगों को? ये चक्कर में उनका टाइम जाता है। जैसे पॉलिटिशियन होते हैं, किस तरह से इलेक्शन जीत के नेता बन के करोड़ों की घोटाला करना, उनकी पूरी जिंदगी उसी में जाता है। किसको रेप करना है, किसको किडनैप करना है, किससे हफ्ता लेनी है, किसको मर्डर करना है, कैसे सिचुएशन को मैनिपुलेट करके उसके पैसा खींचना है, किसको डोमिनेट करना है, विरोधी पार्टियों को, विपक्षी दल को उसको रास्ते से हटाना है, उनका पूरा दिमाग उसी में चलता है, राक्षसों की। ये देश क्या है, भारत क्या है, उसकी सभ्यता क्या है, उसकी संस्कृति क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, परंपराएं क्या है, कैसे देश की, हमारा देश का कल्याण हो, गटर में पड़ा हुआ कैसे देश को उठाया जाए, उनको थोड़ी कोई टाइम होता है उनके पास, इन लोगों के पास।
उनको नेता, उनको कुर्सी से मतलब रहता है। तो ये जो बाबा है एग्जैक्टली ये भी वही करते हैं, और यही लोग हमारे समाज में आते हैं। ये दिस टाइप ऑफ पीपुल, दे डोंट डिसेंड फ्रॉम हेवन, they have also come from our society. The same people enter into politics, the same criminal minded demoniac people, low class demoniac people. The same people enter into politics, the same people enter into religious field, become religious gurus, the same people establish businesses. और कोई बिजनेस कर दुकान करते हैं, दुकान करेंगे तो किसी को चीटिंग करेंगे, 2 नंबरी का धंधा करेंगे, घोटाला करेंगे। तो wherever they go, they do corruption। या नेता बन के करप्शन करते हैं या धर्मगुरु बन के करप्शन करेंगे। नेता भी मर्डर करता है, ये भी मर्डर करते हैं, नेता भी रेप करता है, ये भी रेप करते हैं, नेता भी किडनैप करता है, ये भी किडनैप करते हैं। ये बड़े बड़े गुरु जेल में हैं। नेता भी मनी लॉन्ड्रिंग करता है, ये भी मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। सब वही काम है, और वही हमारी सोसाइटी में ही लोग रहते हैं, वही करते हैं। पब्लिक को पजल करो, पब्लिक को कंफ्यूज करो। मुंबई की लोकल भाषा में अगर कहा जाए, पब्लिक को चुतिया बना के कैसे राजा महाराजाओं की ज़िंदगी जिया जाए, ये इनकी यही फिलोसफी है। और पूरा अपना दिमाग लगा के सिचुएशन को पूरा मैनिपुलेट करते रहो। दिस इज हैपनिंग। सो आज यही हम ख़त्म करते हैं एपिसोड को। आपने अगर पेशेंस से ये लेक्चर सुना तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।